Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu. My dear students, I welcome to all the students in today's video. In today's video, I am going to teach you lesson number 27, the Bremen Town Musicians. It is a very interesting story. So, I am going to read the story and you have to listen carefully and you have to put your fingers on that line, which line I am going to read. If you have your textbook, English Balbati textbook, then open it, page number 58. So let's start. Lesson number 27, the Bremen Town Musicians. Once there was a donkey who had worked long and hard for his master. Now he had grown weak and could not do much work. So his master began to treat him unkindly. He even began to starve the donkey. He wanted to save the money he spent on the donkey's food. In the end, the poor donkey left the house. He believed he still had a good, strong singing voice. So he decided to go to Bremen town and earn his living as a town musician. On the way, he met an old dog. He too had been kicked out of the house by a cruel master. The dog was afraid. How will I earn my bread? He said. Now I am going to explain the first paragraph. So listen very carefully. Once there was a donkey who had worked long and hard for his master. First of all, I am going to explain you Bremen means what. Bremen is a noun of a town in Germany. Bremen is a town in Germany. Once there was a donkey who had worked long and hard for his master. एक बार एक गधा था, उसने अपने मास्टर के लिए बहुत लंबे अरसे तक के काम किया था और बहुत हार्ड वर्क किया था. Now he had grown weak and could not do much work. लेकिन अब वो दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा था और वो ज़्यादा काम नहीं कर पाता था. So his master began to treat him unkindly. So उसका जो मास्टर था यानी उसका जो मालिक था, उसने उसके साथ में unkindly बिहेव करना शुरू कर दिया था. Unkindly यानी रूडली उसके साथ बर्ताव करना शुरू किया था. He even began to starve the donkey. यहाँ तक कि वो उस गधे को भूखा भी रखा करता था. He wanted to save the money he spent on the donkey's food. वो डोंकी के खाने के लिए जो खर्च लगता था, उस खर्चे के पैसे वो बचाना चाहता था. In the end, the poor donkey left the house. और आखिरकार वो गरीब बेचारा जो डोंकी था, उसने वो घर छोड़ दिया. Left means छोड़ देना. He believed he still had a good, strong singing voice. और believed यानी यकीन करना. He believed यानी उसे भरोसा था, उसे यकीन था कि अभी भी उसके पास में एक strong singing voice है. गाना गाने के लिए उसके पास अच्छी आवाज़ है. So he decided to go to Bremen town. तो उसने Bremen town जाने का तय कर लिया, डिसाइड कर लिया कि अब वो Bremen town जाएगा. And earn his living as a town musician. और वो पैसे कमाएगा, उसकी ज़िंदगी बिताने के लिए वो पैसे कमाएगा म्यूजिशियन बनकर. ऑन द वे मीन्स रास्ते पर. ही मेट एन ओल्ड डॉग. उसे एक ओल्ड यानी एक बूढ़ा कुत्ता मिला. ही टू हैड बीन किक्ड आउट ऑफ द हाउस बाय क्रूएल मास्टर. किक्ड आउट यानी उसके मास्टर यानी उसके मालिक ने भी, वो डोंकी के मालिक ने भी उसे एक लात मार के घर से भगा दिया था. क्रूएल मास्टर यानी क्रूएल यानी हिज मास्टर वॉज अनकाइंड यानी बहुत ज़्यादा क्रूर था. द डॉग वॉज अफ्रेड. अब वो डॉग जो था वो डरा हुआ था. हाउ विल आई अर्न माई ब्रेड यानी मैं अब अपनी रोजी रोटी कैसे कमाऊंगा, यानी मैं कैसे खाऊंगा, कैसे पीऊंगा. ही सेड उसने कहा. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस पैराग्राफ. अर्न अ लिविंग मीन्स टू बी पेड इनफ मनी टू लिव ऑन. Now I am going to read the next stanza.
Why you have a voice as good as mine? Said the donkey. Let us both go to Bremen and sing for the town people. We shall be well paid there. So the two companions went on together. Suddenly they heard a cat mewing sadly with tears in his voice. Why are you crying? They asked. Now I am going to explain this para. Why you have a voice as good as mine? कि तुम्हारी आवाज मेरे जैसी क्यों लग रही है? Said the donkey. Donkey ने कहा. Let us both go to Bremen and sing for the town's people. चलो हम दोनों भी जाते हैं और टाउन के लोगों के लिए हम वहाँ पे गाना गाते हैं. We shall be well paid there. हमें वहाँ पे अच्छी खासी सैलरी मिलेंगी, यानी अच्छे खासे पैसे मिलेंगे. So the two companions went on together. तो वो दोनों भी साथ में चल पड़े. Suddenly means अचानक से. They heard a cat mewing sadly with tears in his voice. अचानक से उन्होंने सुना. क्या सुना उन्होंने? कि एक जो बिल्ली थी वो दुख भरी आवाज में, उसकी आवाज में से जैसे आंसू बह रहे थे, दुख भरी वॉइस में म्यू म्यू करी थी. Why are you crying? तुम क्यों रो रही हो? They asked. उन दोनों ने बिल्ली से पूछा. How can I be happy knowing that my mistress is going to drown me? कि मैं कैसे खुश हो सकती हूँ कि मुझे मालूम था कि मेरी जो मिस्ट्रेस थी, यानी जो मेरी मालकिन थी, वो मुझे डुबाने के लिए चली गई थी. I am old and would only like to sit by the fire and sleep. मैं अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हूँ. And would only like to sit by the fire. और मैं सिर्फ आग के बाजू में बैठना चाहती हूँ और सोना चाहती हूँ. I cannot catch mice as I did before. अब मैं पहले के जैसे चूहे पकड़ नहीं सकती जैसे कि मैं पहले पकड़ा करती थी. So my mistress does not need me anymore. तो इसीलिए मेरी मालकिन मुझे घर में नहीं देखना चाहती है. Where am I to go? अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कहाँ जाना है? Now I am going to read the next para. Now you have to put your finger on the next para. Come with us, Bremen. You have a sweet voice and you know night music. You too can be town musicians, said the donkey. Now the three traveled together for some time till they came upon a farmyard. There they heard a cock's loud wailing. When they made inquiries, the cock told them, "My mistress is preparing a feast for her guest. She has told the cook to kill me for the feast. I am so frightened." So the donkey invited the cock too to join the band of musicians. Now I am going to explain this para. Listen very carefully. Come with us to Bremen. चलो हमारे साथ में चलो, ब्रेमेन में जाएंगे. You have a sweet voice. तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है. And you know night music. और तुम्हें रात का म्यूजिक भी मालूम है. You too can be a town musician. तुम भी टाउन म्यूजिशियन बन सकते हो, said the donkey. Donkey ने कहा. Now the three traveled together for some time till they came upon a farmyard. वो तीनों ने साथ में सफर किया. ट्रेवल यानी सफर करना, टुगेदर यानी एक साथ, टिल यानी जब तक के वो एक फार्म यार्ड के पास नहीं आते. देयर दे हर्ड अ कॉक्स लाउड वेलिंग. वहां पर उन्होंने एक कॉक यानी एक मुर्गे की वेलिंग सुनी. वेलिंग का मतलब होता है अ लॉन्ग हाई क्राई ऑफ पेन और सैडनेस, यानी एक लंबा हाई क्राई यानी जोर से रोने की आवाज, दर्द की आवाज, दुख की आवाज, उसे बोलते हैं वेलिंग. When they made inquiries, the cock told them, "My mistress is preparing a feast for her guest." कि मेरी जो मिस्ट्रेस है, इंक्वायरीज करना यानी क्वेश्चन पूछना. उन्होंने उसे काफी क्वेश्चन पूछे, सवाल जवाब पूछे. तो उस मुर्गे ने, उस कॉक ने ये आंसर दिया कि मेरी जो मिस्ट्रेस है यानी मेरी जो मालकिन है, वो मेहमानों के लिए अच्छा खाना बनाना चाहती थी. तो उन्होंने उसे, उसके कुक को बोला है कि वो मुझे कट कर दे.
आई एम सो फ्राइटेंड, मैं बहुत डरा हुआ हूँ. फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ. सो द डोंकी इनवाइटेड द कॉक टू ज्वाइन द बैंड ऑफ म्यूजिशियंस. तो अब डोंकी ने भी उसे इनवाइट किया कि वो भी उस म्यूजिशियन बैंड में उनके साथ में ज्वाइन हो जाए. ब्रेमेन वॉज स्टिल अ लॉन्ग वे अवे. अब ब्रेमन जो टाउन था वो अभी काफी दूर था. ऑन द वे, अब रास्ते में दे हैड टू क्रॉस अ फॉरेस्ट. अब उनको एक जंगल पार करके जाना था. एज इट बिगैन टू गेट डार्क, लेकिन अब अंधेरा होने जा रहा था. द कॉक फ्लू टू द टॉप ऑफ अ ट्री टू लुक अराउंड फॉर शेल्टर. तो जो कॉक था यानी जो मुर्गा था वो एक झाड़ के टॉप यानी झाड़ के ऊंची जगह पर जाके बैठ गया, शेल्टर यानी घर ढूंढने के लिए. ही सॉ एन ओल्ड हाउस अमंग द ट्रीज. उसने एक पुराना घर देखा जो झाड़ों के बीच में था. द 4 फ्रेंड्स डिसाइडेड टू रेस्ट देयर फॉर द नाइट. उन चारों दोस्तों ने ऐसा तय कर दिया, डिसाइड किया कि वो वहाँ पे रेस्ट यानी आराम के लिए वहाँ रुकेंगे. फॉर द नाइट यानी रात भर के लिए. Now I am going to explain the difficult words. Made inquiries means ask questions. Feasting means having a large meal with good food. यानी बहुत बड़ा खाना जिसमें अच्छे अच्छे पकवान हो. Now I am going to explain the next para. It was quite dark by the time they reached the house. Through the window, they saw some robbers feasting at a large table inside. The animals had clever idea. Why not give their first performance here? The robbers would be so pleased that they would happily share their food with the 4 musicians. They might even pay them for their performance. Now I am going to explain this para. It was quite dark by the time they reached the house. मतलब काफी अंधेरा हो चुका था कि वो घर में पहुंचे, उस वक्त काफी अंधेरा हो चुका था. थ्रू द विंडो यानी खिड़की के थ्रू यानी खिड़की से. दे सॉ सम रॉबर्स, उन्होंने खिड़की से झांक के देखा. रॉबर्स यानी डकेट यानी कुछ चोर लोग. फीस्टिंग एट अ लार्ज टेबल इनसाइड. फीस्टिंग यानी खाना खा रहे थे बड़े से टेबल पर. फीस्टिंग मीन्स हैविंग अ लार्ज मील विथ गुड फूड यानी बहुत बड़ा खाना जिसमें अच्छे अच्छे पकवान हो. द एनिमल्स हैड अ क्लेवर आइडिया. अब उस जानवरों के पास एक अच्छा आइडिया है, उनके दिमाग में एक अच्छी आइडिया आई. वाई नॉट गिव देयर फर्स्ट परफॉर्मेंस हियर, कि यहाँ पे हम अपना पहला परफॉर्मेंस क्यों ना दें. परफॉर्मेंस तो आपको पता है व्हाट इज मीन बाय परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस मीन्स एन इवेंट इन विच अ पर्सन और अ ग्रुप does something enjoyable for others. किसी का मन खुश करने के लिए जो परफॉर्मेंस दिया जाता है उसे परफॉर्मेंस कहते हैं. इट इज़ वेरी easy word to understand. So the donkey placed his 4 legs on the window ledge. So the donkey placed his 4 legs. 4 legs means the 2 front legs of a 4-legged animal. 4 leg का मतलब होता है सामने के 2 पैर. जिन जानवरों को 4 पैर होते हैं तो ऐसे जानवरों के 2 सामने के जो पैर होते हैं उसे 4 लेग बोलते हैं. और लेज मीन्स अ नैरो शेल्फ विच स्टिक्स आउट फ्रॉम अ फ्लैट वर्टिकल सरफेस. द डॉग जंप ऑन द डोंकीज बैक. अब जो डॉग था उसने गधे के पीठ पे जंप कर दिया. एंड द कैट ऑन द डॉग्स. और जो बिल्ली थी उसने डॉग की पीठ पर. द कॉक पर्च ऑन द कैट्स हेड. पर्च यानी पर्च का मतलब होता है सेट ऑन द एज ऑफ समथिंग यानी किसी के किनारे बैठ जाना. सेट ऑन द एज ऑफ समथिंग इट इज मीन पर्च. और जो कॉक यानी मुर्गा था वो बिल्ली के पर्च पे बैठ गया. देन ऑल एट वंस एंड ऑल टुगेदर दे बिगैन टू सिंग देयर वंडरफुल सॉन्ग. और चारों ने मिलकर उनका खूबसूरत गाना गाना शुरू कर दिया. वेरी इंटरेस्टिंग. Then, strangely, the music only frightened the robbers. Strangely यानी अजीब गरीब तरीके से जो म्यूजिक था वो उन रॉबर्स को डरावना महसूस होने लगा, उनको डरा रहा था.
दे ओनली हर्ड अ टेरिबल नॉइस, उनको सिर्फ भयंकर भयंकर आवाजें आने लगी। एंड सॉ द ह्यूज शैडो कास्ट बाय द एनिमल्स टुगेदर, और एक बड़ा सा शैडो, शैडो शैडो यानी छाँव, एक बड़ी सी छाँव उनको देखने लगी वो बड़े बड़े एनिमल्स की। बाय द एनिमल्स टुगेदर, क्योंकि चारों जानवर एक के ऊपर चढ़ गए थे तो उनकी जो शैडो थी वो बहुत बड़ी लगने लगी थी। दे स्प्रैंग फ्रॉम द टेबल एंड टेकिंग टू देयर हिल्स डिसअपेयर्ड इनटू द फॉरेस्ट। अब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, टेक टू योर हिल्स का मतलब होता है रन अवे वेरी क्विकली, यानी वहाँ से खिसक जाना, बहुत जोर से भाग जाना, गायब हो जाना। दे ओनली हर्ड अ टेरिबल नॉइज, उन्होंने बहुत भयंकर आवाज़ सुनी, और फिर दे स्प्रैंग फ्रॉम द टेबल, और वो वहाँ से गायब हो गए। डिसअपेयर्ड इनटू द फॉरेस्ट, और वो जंगल में चले गए, वहाँ से खिसक गए। द फोर फ्रेंड्स वेर पजल्ड, और वो जो चारों दोस्त थे वो पजल्ड यानी कंफ्यूज हो गए। दे बिकम कंफ्यूज बट दे ग्लैडली सेट डाउन एट द टेबल। लेकिन ये जो चार थे, ये जो चार दोस्त थे ना, कौन कौन था चार दोस्त कौन थे? देयर वॉज अ कैट, अ डोंकी, अ कॉक एंड अ डॉग। बट दे ग्लैडली सेट डाउन एट द टेबल, वो टेबल पे अच्छे से खुशी से बैठ गए। एंड हैड अ हार्टी डिनर, हार्टी मीन्स कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज अमाउंट, यानी बहुत बड़ा डिनर उनको खाने को मिला। देन दे पुट आउट द लाइट एंड वेंट टू स्लीप, फिर उन्होंने लाइट शुरू कर दिया, पुट आउट द लाइट एंड वेंट टू स्लीप। द डोंकी ऑन द स्ट्रॉ in the yard, the cat near the stove, अब देखो the cat near the stove, the dog on the doormat and the cock on the bedroom of the roof। अब देखो कौन कौन सी प्लेस पे चला गया वो यहाँ पे देखते हैं। हाँ, the put out the light है, the donkey on the straw इन द यार्ड, यानी जो डोंकी था वो यार्ड में चला गया। द कैट नियर द स्टोव, जो बिल्ली थी वो स्टोव के पास चली गई। द डॉग ऑन द डोरमैट, और वो दरवाजे के पास की जो डोरमैट रहते हैं जिसे अपन पैर पोछते हैं उसके ऊपर कुत्ता बैठ गया। एंड द कॉक ऑन द बीम ऑफ द रूफ, और जो कॉक यानी मुर्गा था वो बीम ऑन द रूफ यानी छत के ऊपर जो रूफ मतलब बीम था उसके ऊपर चला गया। बीम मीन्स अ लॉन्ग थिक पीस ऑफ वुड यूज टू सपोर्ट वेट इन अ बिल्डिंग, यानी घर को सहारा देने के लिए एक बड़ा सा लकड़ी का जो रहता है उसको बीम बोलते हैं, उसको बल्ली टाइप जो बोलते हैं ना उसको बल्ली बोलते हैं वो। हाँ, देन नाउ द रॉबर्स हैड नॉट गॉन वेरी फार, लेकिन अभी जो चोर थे यानी जो डकैत लोग जो थे वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे। देयर लीडर सॉ द हाउस बिकेम डार्क एंड क्वाइट, लेकिन अभी उन्होंने देखे कि वो जो हाउस था, जो घर था वो डार्क हो गया, यानी अभी अंधेरा हो गया, और क्वाइट यानी शांत हो गया। सो ही सेंट अ मैन टू सी इफ इट वॉज सेफ टू गो बैक टू द हाउस, तो उन्होंने एक आदमी को अंदर भेजा कि जा अब देखो कोई खतरा तो नहीं है, अभी वो घर में जाके देखो। द रॉबर्स हैड केप्ट ऑल देयर स्टोलन रिचेस इन दैट हाउस, और उन्होंने क्या एंड वांटेड देम बैक, वो जो डकैत लोग थे जो रॉबर्स थे उन्होंने पूरा चोरी का माल उस घर में रखा था, और अब वो चुराया हुआ माल वो वापस ले जाना चाहते थे, चोरी किया हुआ माल वो वापस ले जाना चाहते थे। He turned toward the house. Then I am going to read the next para. The man went into the house on a tiptoe. The man went into the house on a tiptoe. Tiptoe means दबे पाँव जाना। एक आदमी घर के अंदर चला गया दबे पाँव यानी बिल्कुल आवाज ना करते हुए एकदम शांति से अंदर चला गया चोरी चोरी। He saw the cat's eyes and thought they were burning coals. अब उसने देखा बिल्ली की आंखें और ऐसा लग रहा था कि जलते हुए कोयले, क्योंकि रात के अंधेरे में बिल्ली की आंखें कैसे चमकती है ना। He tried to pick up one to light his candle. अब उसने उसके हाथ का कैंडल जलाने की कोशिश किया, but it frightened the cat. लेकिन उससे क्या हुआ, बिल्ली डर गई, एकदम से बिल्ली डर गई। The angry cat flew at him. और एंग्री जो गुस्से वाली बिल्ली ने एकदम से उसके ऊपर उड़ गई। At him and stretched his face. और उसका पूरा मुंह नखोड़ ली, बिल्ली ने उसका पूरा मुंह नखोड़ ली। स्क्रैच में नखोड़ लेना।
दिस फ्राइटेंड द रॉबर। अब ये चीज जो थी उस रॉबर को यानी उस चोर को बहुत डरा गई। ही टर्न टू रन आउट ऑफ द हाउस, यानी अब वो घर से भागने लगा, घर से बाहर भागने लगा। नाउ आई एम गोइंग टू explain the difficult words here. Stumble means lost one's balance and fail. Now the next para. As he ran, the dog on the doormat beat his leg hard. जो कुत्ता जो डोरमेट पे बैठा था, दरवाजे में जो डॉगी बैठा था, उसने उस रॉबर का पैर बहुत जोर से काट लिया। बीट यानी काटना। He stumbled and fell on the donkey. अब वो लड़खड़ाया, कुत्ते के काटने से वो जो चोर था वो लड़खड़ाया। Stumble means lost one's balance and fell, यानी लड़खड़ा के गिरना, उसे बोलते हैं stumble. And fell on the donkey, और वो गधे के ऊपर गिर गया। The donkey woken up suddenly, और एकदम से अब डोंकी उठ गया। Gave the robber a smart kick with his hind legs, और गधे ने पीछे के लेग से उसे जोरदार लात मारी उस चोर को। Hind legs means the two legs at the back of an animal's body, मतलब जानवरों के पीछे के जो लेग होते हैं उसे hind legs कहते हैं। And all this while the cock had been screaming. अब यहाँ पर क्या हो गया, ये सारी चीजें हो रही थी, तो अब scream यानी चिल्लाना, जोर से चिल्लाना। तो अब जो मुर्गा था उसने जोर से चिल्लाया, cock-a-doodle-doo in his ears, and उसकी आंखों के ऊपर, and flapping his wings around his head, और फ्लैप मतलब फड़फड़ाना, और उसके जो फीदर्स थे, उसके जो पंख थे उस चोर के आसपास जोर जोर से फड़फड़ाए उसके सर के पास। द रॉबर नियरली डाइड ऑफ फ्राइट। अब तो तकरीबन वो जो चोर था वो मरने पर आ गया, डर के मारे मरने लगा। फ्लैपिंग यानी वेविंग। नियरली डाइड ऑफ फ्राइट मतलब ऑलमोस्ट डाइड बिकॉज ऑफ बीइंग टेरिबली फ्राइटन, यानी बहुत ज्यादा डरने से मरने की कंडीशन पे आना, उसे कहते हैं नियरली डाइड ऑफ फ्राइट। समहाउ ही गॉट बैक टू हिज गैंग, और जैसे तैसे करके बेचारा वो चोर था तो उनके गैंग के पास वापस पहुंच गया। इन अ ट्रिम्बलिंग वॉइस, ट्रिम्बलिंग यानी शेकिंग अ लिटिल, यानी थर्राने वाली आवाज, उसे बोलते हैं ट्रिम्बलिंग आवाज, थरथराने वाली आवाज। He told them that the house was full of monsters and deadly creatures who beat and scratch and kicked and attacked you in the dark. उस चोर ने उनके गैंग को बोला जाकर कि वो जो हाउस है उसमें बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स यानी बहुत ज़्यादा खतरे हैं, बहुत ज़्यादा मरी हुई जो आत्मा है, डेडली क्रिएचर्स, वहाँ पर डेडली क्रिएचर्स है जो कि नाखुरती है, किक मारती है, तुम्हारे ऊपर हमला करती है, अटैक करती है अंधेरे पर। सो द रॉबर्स नेवर वेंट बैक टू द हाउस, और इसी वजह से जो रॉबर्स थे, जो डकैत थे, जो चोर लोग थे, वो कभी भी दोबारा उस घर में नहीं गए। द फोर फ्रेंड्स फाउंड इनफ मनी इन द हाउस टू लिव ऑन देयर इन हैप्पीनेस एंड कंफर्ट, और वो चारों भी दोस्तों को उस घर में काफी पैसा मिला कि वो अच्छे से खुशी से अपनी जिंदगी बिताए, कंफर्टेबली, हैप्पीनेस यानी खुशी से। That is why the musicians never went to Bremen, और इसीलिए वो जो म्यूजिशियंस थे, वो जो चार दोस्त, चार फ्रेंड्स जो थे, जो म्यूजिशियन थे, वो कभी भी ब्रेमन टाउन नहीं गए। This was a very interesting story. I like this story and I hope that you will understand this story and you would like it too much. Now I'm explaining the difficult words once again, and you have to learn and write the difficult words 2 times. Bremen, a town in Germany. On a living, to be paid enough money to live on. Wailing means a long high cry of pain or sadness. Made inquiries मतलब ask question, सवाल जवाब पूछना। Feasting means having a large meal with good food. Feasting यानी अच्छा खाना। Performance means an event in which person or group does something enjoyable for others. Four legs यानी जानवरों के सामने के जो 2 पैर होते हैं उन्हें four legs बोलते हैं। The 2 front legs of a 4-legged animal. Ledge यानी a narrow shelf which sticks out from a flat vertical surface. Cast यानी to send light or shadows in a particular direction. Now the next
नेक्स्ट वर्ड मीनिंग्स. पर्च मीन्स सैट ऑन द एज ऑफ समथिंग, यानी किसी जगह पर बैठ जाना. टेक टू योर हील्स, टू रन अवे वेरी क्विकली, यानी जल्दी से खिसकना, जल्दी से भाग जाना. हार्टी यानी कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज अमाउंट, यानी बहुत बड़े पैमाने पर, उसे बोलते हैं हार्टी. बीम मीन्स अ लॉन्ग थिक पीस ऑफ वुड यूज टू सपोर्ट वेट इन अ बिल्डिंग. स्टम्बल मीन्स लॉस वंस बैलेंस एंड फेल. स्टम्बल मीन्स लड़खड़ा के गिर जाना. हिंड लेग्स यानी पीछे के दो लेग्स. द टू लेग्स एट द बैक ऑफ एन एनिमल्स बॉडी, जानवरों के पीछे के जो लेग होते हैं उसे हिंड लेग्स कहते हैं. फ्लैपिंग यानी वेविंग, यानी फड़फड़ाना. नियरली डाइड ऑफ फ्राइट, यानी ऑलमोस्ट डाइड बिकॉज ऑफ बीइंग टेरिबली फ्राइटन, बहुत ज़्यादा डरने से मरने की कंडीशन पे आ जाना. ट्रिम्बलिंग मीन्स शेकिंग अ लिटिल, यानी थोड़ा थरथराना. मॉन्स्टर मीन्स एन इमेजिनरी क्रिएचर दैट इज लार्ज एंड फ्राइटनिंग. एक मॉन्स्टर है ना, एक बड़ा सा ऐसा जो अपने को डराने वाली चीज़, एक बड़ी सी. डेडली मीन्स लाइकली टू कॉज डेथ. सो यू हैव टू लर्न एंड राइट दिस डिफिकल्ट वर्ड एंड देयर मीनिंग्स 2 times. And your homework is, the homework of yours is, you have to read this lesson 2 times. You have to read lesson number 27, the Bremen Town Musicians, 2 times, and you have to learn and write the difficult words 2 times. This is your homework. So thanks for watching. We will meet in the next video soon. Till Allah Hafiz.